सो अभी हमने जो किया था दैट वाज नथिंग बट दैट वाज SNAR में क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं. ओके, SNAR कैन अंडरगो टू टाइप्स, दैट इज SN sorry via addition elimination reaction, and another is elimination addition. This we have covered. Okay, and here the important part was formation of Mesenheimer complex. Fine. And the role of electron withdrawing group is also important. And similarly, with by solving this Sankalp's problem, we even discuss this, that is you should be clear about it. That is, if we compare chlorobenzene with vinyl halide, if we compare chlorobenzene with vinyl halide, the rate of reactivity of nucleophilic substitution reaction, then again it will depend on the type of this what you say electron withdrawing group which is attached. Fine. Now let me quickly, before discussing this elimination addition reaction, let me quickly ask one question. Okay, suppose you have fluoro and 2,4-nitrobenzene in the presence of aqueous NaOH. This is one reaction. Okay, and another is fluoro NO2, similar thing, and again aqueous NaOH. So, which reaction will move fast? Which will be favored? Anyone? मैम फ्लोरीन होगा क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है. Anyone else? Anyone else? रोहन, कुछ सोच पा रहे हो? नो मैम. प्रबल? सोच रहा हूँ. आशु? ओके. मैम फ्लोरीन वाली ज्यादा रिएक्शन होगी. फ्लोरीन हो सकता है ना मैम, क्योंकि वहाँ पे हाईली रिपल्सन हो जाएगी मैम लोन पेयर्स में. ओके. मैम फ्लोरीन होगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, हाईली पार्शियल पॉजिटिव चार्ज फॉर्म इलेक्ट्रॉन करेगा. डेंसिटी कम हो जाएगी मैम. Okay, but just see, all of you are giving some probable reactions. ठीक है, कुछ ना कुछ आप प्रोबेबिलिटी के आधार पे आंसर दे रहे हो और कोई ना कोई रीजन दे रहे हो. ओके, नाउ जस्ट चेक दिस because we have limited time, so I'm not making anything again. Just check. यहाँ हमने कुछ डिस्कस किया. फाइन. ओके, अब इसमें मैं क्लोरो की जगह क्लोरो लगाती हूँ, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज की पॉसिबिलिटी है ये बढ़ेगी कि कम होगी? बढ़ेगी मैम. ओके, तो अगर बढ़ेगी, अगर फ्लोरो की में पॉजिटिव चार्ज की टेंडेंसी बढ़ेगी, सो दैट मीन्स ज्यादा फिर फेवरेबल रिएक्शन या ज्यादा फास्ट या ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कौन सा कहलाएगा? फ्लोरीन वाला. फ्लोरीन. हाँ, फ्लोरीन वाला मैम. फ्लोरीन के केस फ्लोरीन होगा मैम. क्लोरीन और फ्लोरीन. फ्लोरीन. एफ में. एफ. ओके, सो अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए. क्लोरीन 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 बोल रहे हो आंसर. आप मैकेनिज्म की तरफ जाओ. और दूसरा, जब मैंने इसको एडिशन किया है एंड दिस वाज द स्लो स्टेप, ओके, एंड यू नो रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द स्लो स्टेप पे, तो यहाँ पे रेट इज डिपेंडेंट ऑन दिस ArCl and nucleophile. Okay, so this is also bimolecular. ये SN2 टाइप है. ओके, लेकिन फर्स्ट स्टेप में एडिशन हो रहा है एंड देन सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. तो क्योंकि, ध्यान से सुनो, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन इज डिपेंडेंट ऑन द स्लो स्टेप,
Okay, and in the slow step, this that means the formation of this positive charge, the concentration of positive charge is where the positive charge, the group which increases more the positive charge will give more favorable रिएक्शन. फाइन, अदरवाइज तो क्लोरो होता. देखिए अगर सेकंड स्टेप स्लो होता, ध्यान से सुनिए, अगर सेकंड स्टेप विच वाज एलिमिनेशन, ये जो है ये क्लोरो निकला, सो दिस स्टेप इज एलिमिनेशन, दिस स्टेप इज एलिमिनेशन. अगर ये होता तो ऑब्वियसली क्लोरोबेंजीन होता, बिकॉज फ्लोरो इज डिफिकल्ट टू रिमूव as compared to chloro, isn't it, class? Yes, ma'am. Chloro is difficult to remove as compared to chloro. So if rate of reaction would have been dependent on this step, that is elimination step, then तो chloro ही आपका जो होता, जो है with chlorobenzene or chloronitrobenzene would undergo the reaction faster and will be the favorable. Okay, that will prefer more nucleophilic aromatic reaction, but rate of reaction is dependent on this step, slow step, and formation of Mesenheimer complex. So that's why, that is the reason, because we all know randomly answer नहीं देना. Okay, तभी मैं कह रही हूँ आपको randomly नहीं, सोचो अब तब आंसर दो कि आपका, क्योंकि मैडम कुछ नहीं कह रही तो कुछ भी कह दे, नहीं. आई एम हियर टू एनकरेज, बट अगर गलत बार बार करोगे, रिपीटेडली करोगे, सो दैट इज नॉट द थिंग. सो वी ऑल नो दिस फ्लोरो, ओके, दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू क्लोरो. प्लीज माइंड इट, दिस इज वी ऑल नो, बट आप गलत स्टेटमेंट दे देते हैं और आंसर दे देते हैं. ठीक है, सो फ्लोरो इज मोर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो इट विल क्रिएट मोर पॉजिटिव चार्ज, and so this reaction will be faster, okay, as compared to this. Class, is it clear? ये आपका एंट्रेंस का क्वेश्चन है, समझ में आया? पहले तो ये बताओ, समझ में आया? Yes. Okay? Yes, ma'am. ये आपके Yes, ma'am. क्वेश्चंस हैं कि फ्लोरो और क्लोरो नाइट्रो, देखो डायरेक्ट तो आपको बता दिया कि देयर इज अ एरोमेटिक न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन दिस एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होगा और एलिमिनेशन एडिशन. ओके, अब आप ध्यान से फिर से आइए, यहाँ पे ध्यान से आइए. यू हैव, वी आर स्टडीइंग अगेन SNAR, वी हैव स्टडीड एडिशन एलिमिनेशन. नाउ व्हाट इज एलिमिनेशन एडिशन? यू फॉरगेट दिस. ओके, अब जो अभी किसी ने मुझे बताया कि क्लोरोबेंजीन, कंफ्यूज मत होना, क्लोरोबेंजीन में जब हम एक्वस NaOH डालते हैं एंड हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर डालते हैं, तो आपका फिनॉल बनता है. एंड दिस इज नथिंग बट वेल नोन डाउस प्रोसेस. Manufacturing of phenol is done by this method, manufacture. So that is a highly preferable reaction. इसके अलावा if chlorobenzene में if I add ammonia, whether there will be any reaction? Aqueous ammonia, any reaction? Okay, let me change the question. In RCl, if I add aqueous ammonia, whether there will be any reaction? Yes, ma'am. मैम What will ये क्लोरोबेंजीन से नहीं होगा मैम, RCl से हो सकता है. अल्काइल अमाइन बन जाएगा. What will be the answer with alkyl chloride? RNH. NH2. Yes, Okay. ma'am. About here, whether there will be any reaction? मैम उसका रिएक्शन नहीं होगा. नो रिएक्शन मैम. मैम नो रिएक्शन होगा मैम. No reaction. Okay. Now, if I add chlorobenzene, I add aqueous ammonia, but with this I add strong soda amide base, which is NaNH2. Same अमोनिया के पैरेलल में ही हमने बेस ले लिया NaNH2. Then there is a formation of aniline.
Okay. Now we need to check out that whether this is a substitution reaction. But actually it has happened. So we can, in other terms, we can say that this is nothing but aromatic substitution. There is a substitution here. Okay, nucleophilic substitution. But whether it is actually nucleophilic substitution, okay, तो मैंने क्या किया, ध्यान से देखना. मैंने क्लोरोबेंजीन लिया. अब क्लोरोबेंजीन को मैंने एक्वस अमोनिया तो डाला, रिएक्शन नहीं होगा. फिर मैंने सोडा अमाइड डाला विच इज NaNH2. वी आर गेटिंग अमोनिया, amine, sorry, aniline. Okay. Now what I do is I label this carbon. Okay, label means what? I take, instead of carbon 12, I take its isotope, which is also known as famous isotope. पढ़ेंगे ये isotope labeling, isotopic labeling. So instead of carbon 12, I take carbon 14, C14. Okay, तो आप आइसोटोप ले लेते हैं इसका. नाउ जब हम ये लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, ध्यान से देखना. NH2 ग्रुप वहां लगा जहां पर की आइसोटोप था, बट with this we get one more product. So we get two types of product. Okay, one where the isotope was there this NH2 was attached. Another was the compound having this isotope, वहां ना NH2 जाके उसके parallel, that is ortho position, जो ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है, that is one on the same. तो अगर यहाँ जाता है तो we see this reaction, these products. So on the basis of this normal nucleophilic substitution reaction cannot explain this observation. Class, is it clear मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? Normal nucleophilic substitution mechanism cannot explain either SN1, SN2 or any kind of such reaction cannot explain this kind of product. Am I clear? पहले इतनी बात समझ में आई? इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा कि मैंने अगर आइसोटोप ले लिया क्लोरोबेंजीन का, यहाँ पे मैंने इस कार्बन का आइसोटोप लिया और मैंने एक्वस NaOH डाला और आपने हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर भी ले लिया, सब ले लिया, लेकिन जो प्रोडक्ट आता है आपका वो एक फिनॉल ये आया जहां पे ये था लेबल, बट साथ में एक और फिनॉल आया, भाई एक तरह का और फिनॉल आ गया जहां पर की OH वहां लगा जहां पे नहीं था. ओ
So ammonia and KNH2, we are getting the product as aniline. Okay, if we take the isotope, so we get two types of product, this and this. And understanding of this mechanism is very important. Now, why and what type of reaction it undergoes? Mechanism. So, are we ready, class, to look into the mechanism? Are we ready? Yes or no, class? Yes, ma'am. Yes, ma'am. All of you are awake? Because I am going to tell you very important concept now. Fine? Okay. Just see what happens. Let me इसकी thickness कम कर दूं ज़्यादा. So let me take the example. Example क्या? एक बार आप ध्यान से देखिए. आपको बोर्ड दिख रही है? दिख रही है? Yes, ma'am. ठीक है. अब देखिए. मैंने लिया क्लोरोबेंजीन. फाइन. ऐसा क्या होता है हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर में, या फिर इस तरीके से अगर हम यूज कर रहे हैं तो क्या होता है? देखिए, अब ध्यान से देखिएगा. KNH2 is a strong base. So it is a very strong base. So what will happen? Wherever the chlorobenzene is there, from the ortho position of the chlorobenzene, any of the ortho position of chlorobenzene, this strong base will abstract the proton. बहुत ही डिफरेंट चीज बता रही हूं मैं, जो अभी तक आपने नहीं पढ़ी. So from here there will be abstraction of proton, and once the proton is abstracted, so then that means ammonia is released, which is already there in the system also. वो हम डालेंगे इसमें. Okay, but ammonia is released, और यहाँ पे ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जाता है. बहुत अनयूजुअल है. यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर छोड़ के जा रहा है. क्लास, पहले यहाँ तक बात समझ में आ रही है? क्या बोल रही हूँ मैं? Yes, ma'am. ओके. नाउ नेक्स्ट, ये नेगेटिव चार्ज जो छूटा, ये अपना इलेक्ट्रॉन यहाँ देता है, एंड सिंस वी नो, सॉरी यहाँ क्या देगा, इस पे देता है, एंड दिस इज लेफ्ट. ओके, दिस लीव्स एंड वी गेट दिस moiety. This. Okay, and this is nothing but see, this benzene ring carrying triple bond at one position is benzyne intermediate. Fine, class. There is a benzyne intermediate, and this step, at this position or at this step, there is a elimination which happened. Elimination which happened. Fine. Okay. So यहाँ पे ये क्लियर है कि एलिमिनेशन हुआ. अब आगे चलते हैं. देखिए, we have got this benzyne intermediate. इस benzyne intermediate को, which is not very stable, okay, but it has been isolated. That's why I am not calling it as a transition state. I am calling it as intermediate. जैसे आप कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट पढ़ा आपने, ठीक है, आप आगे पढ़ेंगे कार्बीन इंटरमीडिएट, नाइट्रीन इंटरमीडिएट, हम सब ये डिटेल में पढ़ते हैं. एंड अगर अभी आपने ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ा तो आप पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ेंगे ये इसके आगे कि व्हाट आर कार्बीन इंटरमीडिएट, व्हाट आर नाइट्रीन इंटरमीडिएट. ठीक है, आप कार्बन एनायन पढ़ते हैं, मतलब रेडिकल्स पढ़ते हैं, इस तरह की चीजें आप पढ़ेंगे. ओके, सो हियर देयर इज अ बेंजाइन इंटरमीडिएट which is formed. Okay, now we know the role of this benzene. Okay.
सो द नेक्स्ट स्टेप विल बी, स्टेबल तो रहेगा नहीं, अमोनिया जो है सिस्टम में वो अटैक करेगा। ओके, हमें पता है एक जो है ये आपका लेबल्ड है, ये लेबल्ड है, और दूसरा लेबल नहीं है। लेकिन अमोनिया के पास तो प्रावधान ऐसा नहीं है ना, वो तो ये डबल बॉन्ड को हटाएगा और कहीं भी अटैक कर सकता है, ऐसे और ऐसे, या फिर अदर वे राउंड। सो वी विल गेट दिस। NH3 positive and minus again. Fine. मैम NH2 ना मैम? NH3 is attacking, please. Then you have NH3 positive and you have minus charge. Fine. This, ये मैं एक बार फिर इसको लिख देती हूँ. This can be rewritten like this. H, H, H positive and minus. So you know, in order to neutralize this, H will be left and ये H जो है इसको balance कर देगा. So basically you will get aniline as a product. Okay, and this step was addition. Fine. यही अगर इसका उल्टा होता, मैं जो यहां पे कर रही हूं आपको, अमोनिया अटैक कर रहा है एट द अदर पोजीशन. ओके, ये थोड़ा सा मतलब वो हो जाएगा. मैं लेट मी चेंज द कलर सो दैट ये आपको हेलो लेट मी फर्स्ट कंप्लीट प्लीज. मैम, ये निगेटिव चार्ज कैसे बैलेंस होगा? Let me first complete, please. Okay, so ammonia here it is there. Okay, now suppose this ammonia will attack at this position, so negative charge यहाँ आएगा, so you will get this moiety. These both are visible because ammonia को नहीं दिख रहा यहाँ अटैक करना, यहाँ उसे बेंजाइन इंटरमीडिएट दिखा है. Fine. So what happens is we get now negative charge here, and here you have NH, NH, NH positive and this thing. Fine. Now we all know ये H जो है this will go off and this will stabilize here, and we get again NH2. Fine. So we get two types of product. One where this carboisotope labeling is there, there also NH2 group comes, and here it justifies the reason ki why we get two types of product when we do the isotope labeling. If we do not do isotope labeling, तो हमें mechanism पता नहीं चलता. Okay, लेकिन जब हमने labeling की, क्योंकि it is very difficult to see कि भाई क्लोरोबेंजीन में ऐसे कैसे आपने अमोनिया डालते हैं तो प्रोडक्ट नहीं आता, बट सोडा अमाइड डाल रहे हैं तो आपका कुछ रिएक्शन होके सब्स्टिट्यूशन हो रहा है. इसका मतलब कि सोडा अमाइड जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, लेकिन किस मेथड से करा रहा है. इट वाज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो दिस. ओके, सो दिस वाज फाइनली जो है ये आइसोटोप लेबलिंग की वजह से हुआ. तो अगर आप इस पूरी मैकेनिज्म को एक बार ध्यान से देखिए, ठीक है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस पे रिलेटेड आपके क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से पूछे जाएंगे. तो आप यहाँ देखिए कि पहले स्टेप में सोडा अमाइड विच इज अ स्ट्रॉन्ग बेस क्या करता है, ध्यान से देखिएगा. उसका एक ही काम है, जहां पे क्लोरोबेंजीन लगा हुआ है उसके ऑर्थो पोजीशन से आपका दिस एट फ्रॉम द ऑर्थो पोजीशन प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा. क्लास इज इट क्लियर? पहले फर्स्ट स्टेप में मैं सबके डाउट क्लियर Yes, कर ma'am. ध्यान से सुन लो. तो स्ट्रॉन्ग बेस विल एब्स्ट्रैक्ट द प्रोटॉन फ्रॉम ऑर्थो पोजीशन. ओके, ऑर्थो से पोजीशन से जब एब्स्ट्रैक्ट किया तो आपको ये मॉइटी आई, ये ध्यान से देखो, ये आई. ओके,
फिर इस स्टेप में आप देखिए जब प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट किया तो यहाँ ऑब्वियसली आपके नेगेटिव चार्ज आएगा। ये ऑर्थो, ये भी हो सकता है ऑर्थो और ये भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं। फर्क तब आएगा कि कौन सा ऑर्थो प्रिफर होगा, सपोज अगर कोई सब्स्टिट्यूशन होता है तो ऐसे क्वेश्चंस हो सकते हैं आपके एंट्रेंस में कि यहाँ पर भी कुछ सब्स्टिट्यूशन है, कोई सब्स्टिट्यूट है, और फिर आपको देखा जाएगा कि भाई कौन सा प्रोटॉन निकालना फेवरेबल है। बट यहाँ अभी पहले नॉर्मल सीखिए, नॉर्मल के बाद हम उसका एक्सेप्शन पे जाएंगे। फाइन। सो वैसे ही एक्सेप्शन है, फिर एक्सेप्शन में एक्सेप्शन पढ़ेंगे। पहले यहाँ ये देखिए कि क्लोरोबेंजीन आपका जो है, आप यहाँ ऑर्थो पोजीशन पे माइनस चार्ज आया और उस माइनस चार्ज ने फिर आपका बड़े ही इंपॉर्टेंट मॉइटी बनाई विच इज बेंजाइन मैकेनिज्म। यहां तक क्लियर है आपको कि बेंजाइन मैकेनिज्म, बेंजाइन कैसे बना? यस मैम। आपका बेंजाइन कैसे बना ये क्लियर है? यस मैम। ओके, नाउ लेट्स अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिएगा और ग्रुप में भी डाल सकते हैं आप, ठीक है मैम। यस मैम बस ये लास्ट में समझ नहीं आया कि माइनस चार्ज कैसे न्यूट्रलाइज हुआ। बता रही हूँ, लेट मी कंप्लीट इट। ओके, लेट मी कंप्लीट इट। पहले यहां तक आ गया कि बेंजाइन आ गया, यस मैम। ठीक है, ये माइनस आया लेकिन फटाफट बेंजाइन इंटरमीडिएट बना। फाइन। अब बेंजाइन इंटरमीडिएट जब बन गया तो ध्यान से देखो, अभी किसी ने बोला अमीन आप अटैक करेंगे और कुछ किताब में गलत दिया भी हुआ है, लेट मी टेल यू, बट दिस मैकेनिज्म आई हैव रिटन फ्रॉम सोलोमन्स। ओके, मतलब रिटन क्या बोलूं, मेरे को फिर उसका मैकेनिज्म बेस्ट लगा, अच्छा लगा, तो मैं उसी की तरह से एक्सप्लेन कर रही हूँ। ओके, सो हाफ वे चीजें नहीं सीखते कि भाई NH2 माइनस अटैक करेगा। क्यों करेगा जब हमारे पास, तब तो रोल क्या रह गया अमोनिया का, हम तो अमोनिया अटैक करना चाह रहे थे। फाइन, और अमोनिया फॉर्म भी हुआ है, रिएक्शन में भी फॉर्म हुआ है उस प्रोटॉन से। फाइन, नाउ दिस अमोनिया कैन अटैक एट 2 साइड्स। फाइन, इज इट क्लियर क्लास? अमोनिया कैन अटैक एट दिस साइड। तो पहला जो स्टेप था वो यहाँ पे इस स्टेप में एलिमिनेशन हुआ और इस स्टेप में अब एडिशन हो रहा है अमोनिया का। दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन मैकेनिज्म इज नोन एज एलिमिनेशन एडिशन। ठीक है क्लास? यस मैम। SNAR के 2 टाइप्स बताए थे, एलिमिनेशन एडिशन और एडिशन एलिमिनेशन। सो यहाँ पहले एलिमिनेशन हो रहा है, उसके बाद एडिशन हो रहा है। तो अब आपका ये अमोनिया ने अटैक किया तो आपका इस तरीके से आप देखिए माइनस चार्ज आया। अब आप कह रहे हैं ये माइनस चार्ज कैसे स्टेबलाइज, अरे इतना फॉर्म, ये हम बेसिकली वी आर प्रिज्यूमिंग ऑल, ओके, बिकॉज वी आर गेटिंग दैट प्रोडक्ट। अब ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज कैसे हो रहा है? फटाफट हो रहा है। अरे भाई अमोनिया पे NH3 पे पॉजिटिव चार्ज रहेगा थोड़ी, ये तो फिर ये हो गया ना, इसमें से फटाफट एसिड हो गया, ये फटाफट ये अपना प्रोटॉन दे देगा और यहाँ पे H आ जाएगा। ये जो H है ये यहाँ आ जाएगा आपका। तो दिस इज प्रिज्यूमिंग कि ऐसा बना, नहीं तो मैं तो डायरेक्ट भी बना सकती थी। ओके, बट ये होता रिएक्शन ऐसे ही है, अमोनिया विल अटैक एंड देन दिस विल स्टेबलाइज, ये पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पे फटाफट स्टेबलाइज करेगा एंड यू विल गेट दिस माइनस चार्ज विल बी स्टेबलाइज्ड बाय द प्रोटॉन रिलीज्ड हियर फ्रॉम हियर। ओके, सो ये जो H है, यहाँ पर जो H आएगा, ये जो इसमें आया वो H यहाँ से आया। ठीक है क्लास? ठीक है? Is it clear? Yes, ma'am. Okay, so this we have studied is SNAR. अभी मैं एक मैकेनिक एग्जांपल दूंगी फटाफट। We have इसको ध्यान से समझना, we have SNAR में we have addition, elimination and we have elimination, addition, addition, elimination via Mesenheimer complex हमने पढ़ लिया, and this was elimination addition which was via benzyne mechanism. Okay, benzyne mechanism से ये होता है। अब आप स्वयं बनाएंगे और अगर आपने बना लिया, मुझे इंप्रेस करने के लिए मत करिए, आपने क्लोरोबेंजीन में ध्यान से देखिएगा, अब मैं एक्वस NaOH डाल रही हूँ तो नो रिएक्शन हो रहा है, लेकिन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे दिस NaOH ये जो है this will act as a very strong base. OH minus will act as a very strong base. At high temperature and high pressure,
basicity of OH minus is very high. Class, is it clear? Class, Yes, ma'am. now will you be able to draw the mechanism? This OH minus will abstract the proton from here, so you will get ठीक है. This is elimination. You get benzene. Ma'am. You get benzene intermediate, and then water will attack. Then water will attack. Okay, OH minus नहीं अटैक करेगा क्योंकि यहाँ पे इस स्टेप में क्या बना है, माइनस वाटर, H और OH. Water will attack either at this point or at the other point. Fine. So you will get, please try to make in your notebook. ये बिना बनाए आपको नहीं आएगा. OH2 positive and minus charge. Now this minus charge will be stabilized by this one OH. यहाँ से H एक चला जाएगा. So we will basically get phenol. Fine. और यही अटैक फिर दूसरे साइड से भी हो सकता है. So अगर आइसोटोप लेबलिंग करते हैं तो सेकेंड स्टेप से, सेकेंड वे से भी हो सकता है. ठीक है. This was all एडिशन, एलिमिनेशन और एलिमिनेशन एडिशन. नाउ मैं क्वेश्चन दूंगी, इससे पहले आपके डाउट सॉल्व करती हूँ. यस, बोलिए मैम. ये हाइड्रोजन ऑर्थो पोजीशन से ही क्यों निकल रहा है मैम? ओके, वेरी गुड क्वेश्चन. ये ऑर्थो से ही क्यों निकल रहा है? एनीवन विद द आंसर? मैम ऑर्थो पोजीशन ज्यादा एसिडिक होगी क्योंकि Cl नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाती है और वो डिस्टेंस डिपेंडेंट इफेक्ट है. हियर इज द आंसर. आशीष, ओके. ठीक है. आउट ऑफ बॉक्स सोचना है, कंपटीशन है बहुत. ठीक है, तो आप ये देखिए, बहुत आउट ऑफ बॉक्स की बात नहीं है. आपने बहुत अच्छा और रेलिवेंट क्वेश्चन पूछा है. आई अप्रिशिएट कि ऑर्थो से ही, और हो सकता है कहीं पूछे भी आपके इंटरव्यू में, एंट्रेंस में, कि कहाँ से पोजीशन से निकलेगा. एंड वेरी वेल, इसी को कहते हैं कि आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है कि वी नो इट इज बिकॉज ऑफ द इंडक्टिव इफेक्ट. इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है? पोजीशन डिपेंडेंट है, ऑर्थो या पैरा. ठीक है ना. तो ऑर्थो पे ज्यादा मतलब इसका इफेक्ट है. जब ऑर्थो पे ज्यादा इफेक्ट है तो ये प्रोटॉन तो यहाँ से आराम से निकल जाएगा. ठीक है, ठीक है आशीष. यस मैम. एनी अदर डाउट? मैम जब माइनस चार्ज हो गया, जिसने माइनस चार्ज स्टेबलाइज कैसे होता है, वो डाउट क्लियर हुआ? यस मैम, क्लियर है. ठीक है. आई हैव रिकॉर्डेड बोथ लाइक दिस थिंग. ठीक है. दोनों पिछली क्लास का भी, ये भी मैंने जो है मैकेनिज्म रिकॉर्ड कर लिया है. वैसे अब मैं एक क्वेश्चन दे रही हूँ आपको, जो फिर आपको आउट ऑफ बॉक्स सोचना पड़ेगा. प्रोडक्ट. प्रोडक्ट. मैम फर्स्ट में रिएक्शन हो जाएगी लेकिन सेकंड में नहीं होगी मैम.